Hello, dear students. In this lecture, we would cover the disorders of purine metabolism. Generally, we have to cover the hyperuricemia and gout. Okay, so let's revise a little bit about the purine catabolism. In the previous lecture, we have discussed about purine biosynthesis and purine catabolism. So, थोड़ा सा हम उसको revise करेंगे, so we get more clear idea of this disorder of purine metabolism. तो हमने प्यूरिन बायोसिंथेसिस में देखा था किस तरह से आपका डी राइबोस 5-फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इनटू इनोसिन मोनोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स। तो यहाँ पे पीआरपी सिंथेटेस इज एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो हम देखेंगे हाइपरयूरेसिमिया एंड गाउट में। सो दिस पीआरपी सिंथेटेस इज 5-फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेस। ठीक है, ये आपका ये फॉर्म कर रहा है फर्दर दिस पीआरपी ग्लूटामिल aminotransferase. This PRPP stand for phosphoribosal pyrophosphate glutamyl aminotransferase. This converting this into beta 5 phosphoribosal amine and further इस तरह से आपका ये पूरा पाथवे जा रहा है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म प्यूरिन बायोसिंथेसिस का, which is ultimately forming the inosine monophosphate. And this inosine monophosphate is a parent purine nucleotide which is further converting into your this adenosine monophosphate and guanosine monophosphate. And in catabolism of purine nucleotides, this AMP adenosine monophosphate is converting into IMP, or it is converting in adenosine which is further converting into inosine. This is converting into hypoxanthine, further into xanthine, and this xanthine in the presence of xanthine oxidase is converting into uric acid. यहाँ पे भी आपका जो GMP है this is converting into guanosine, again the guanine, and is converting into xanthine. तो ये जो आपका xanthine है this is ultimately converting into uric acid in the presence of xanthine oxidase. तो जो आपका ultimately catabolized product of purine nucleotide is uric acid. So ultimately जो आपका end product है purine metabolism का that is your uric acid. ठीक है, normally जो आपका concentration होता है blood concentration of uric acid is 3 to 7 mg per day in adults, and in women it is slightly 1 mg lower than this range. Daily excretion of uric acid is about 500 to 700 mg. तो ये आपका यूरिक एसिड हो गया which is an end product of purine metabolism. Now hyperuricemia is जब आपका ये यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है, that will be increased, elevate होगा, right? जो आपका ये नॉर्मल रेंज है अगर इससे ज़्यादा होता है यूरिक एसिड ब्लड सेरम में तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हाइपरयूरेसीमिया. सो दिस कंडीशन हाइपरयूरेसीमिया स्टैंड्स फॉर, देखिए यहाँ पे ये टर्म ही इंडिकेट कर रहा है दिस हाइपर मैन मीन्स एलिवेटेड लेवल यूरिक एसिड and this in serum. So hyperuricemia that means the elevated level of serum uric acid concentration जो आपका ये रेंज से इंक्रीज करता है तो दिस हाइपरयूरेसीमिया अराइजेस. अब ये ब्लड कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने की वजह से ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होते हैं. तो जब यूरिन में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है सो उसको हम बोलते हैं यूरिकोसूरिया. ठीक है, जब भी आपका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ेगा दैट कंडीशन विल बी यूरिकोसूरिया. सो दिस टर्म इज क्लियर. This hyperuricemia means the elevated level of uric acid in your blood, and uricosuriya is increased uric acid excretion in your urine. So this is the hyperuricemia. अब gout क्या है? So gout is a metabolic disease. ठीक है, ये एक metabolic disease है जिसमें uric acid का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, ये दिस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज जहाँ पे जो यूरिक एसिड है दिस इज ओवर प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. तो अब ओवर प्रोडक्शन क्या हो रहा है तो उससे क्या क्या राइज होंगे, तो
तो जो नॉर्मली अगर आप फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखें तो यूरिक एसिड इज इन द सॉल्युबल फॉर्म, एक सॉल्युबल फॉर्म में सोडियम यूरेट सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बट जब आपका हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन होता है, जब आपका यूरिक एसिड बहुत इंक्रीज कर जाता है ब्लड सेरम में, तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपके दिस फॉर्म्स, जो यूरिक एसिड होता है दिस फॉर्म्स द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट। और जब ये आपके क्रिस्टल्स बनाते हैं तो दे जनरली गेट डिपॉजिटेड इन योर सॉफ्ट टिश्यूज, जनरली आपके जॉइंट्स में। सो गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज है जहाँ पे आपका यूरिक एसिड प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। अब नॉर्मली अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल पीएच पे, जो आपका यूरिक एसिड होता है दिस इज इन द सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, ये आपके सॉल्युबल फॉर्म में रहता है सोडियम यूरेट सॉल्ट के फॉर्म में। वहीं जब आपका हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है तो दिस विल बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट। तो जनरली आप देखे होंगे जब आप किसी भी प्रैक्टिकली भी आप ये चीज़ देखे होंगे, जब आप सोल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो दे गेट क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसी तरह से जब सेरम में आपका यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट। और ये जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ये जगह जगह पे आपके सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। जनरली जॉइंट्स में ये जब डिपॉजिट होते हैं तो दिस कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई भी आपका अनइवन जो सॉल्ट्स हैं अगर डिपॉजिट होंगे किसी टिश्यू में तो दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। सो ये सिचुएशन को हम बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जहाँ पे आपके जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होने शुरू करते हैं एंड दिस कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड दिस रिजल्ट इन पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस। इसके अलावा भी जो आपका सोडियम यूरेट या फिर यूरिक एसिड है दे प्रेसिपिटेट इन किडनी एंड यूरेटर्स में आपकी किडनीज में रीनल डैमेज भी करते हैं एंड यूरेटर्स में जनरली स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। तो यूरिक एसिड के बढ़ने से ये सारे कंडीशंस आपके अराइज होते हैं। पहला, एक तो ये क्रिस्टल्स बनाते हैं जो कि आपके सॉफ्ट टिश्यूज में डिपॉजिट होके इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, जनरली जॉइंट्स में, दिस कॉजेज गाउटी आर्थराइटिस। इसके अलावा किडनी में, ठीक है, प्रेसिपिटेट होके रीनल डैमेज कर रहे हैं एंड इन यूरेटर्स दीज आर फॉर्मिंग द स्टोन फॉर्मेशन। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ गाउट। तो जो आपका गाउट है दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब जो आपका प्राइमरी गाउट है दिस इज this disorder or this primary gout is associated with metabolic defects in enzymes। तो ये आपका एक जेनेटिक डिफेक्ट है। अगर किसी एंजाइम में कोई डिफेक्ट होता है उसकी वजह से अगर ये गाउट, ठीक है, इसकी वजह से अगर यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो दिस इज प्राइमरी गाउट, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो आपका प्राइमरी गाउट होता है ये इनबॉर्न होता है, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट की तरह होता है। अगर आपके किसी भी एंजाइम्स, ठीक है, किसी भी एंजाइम में कोई आपकी प्रोडक्ट डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी गाउट। वेर इज सेकेंडरी वी विल सी फर्दर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी गाउट। अब इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं जिसमें डिफेक्ट की वजह से आपका यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कौन कौन से एंजाइम है? सबसे पहले पीआरपीपी सिंथेटेज, ठीक है। सो अभी हमने पीआरपीपी सिंथेटेज देखा था। सो व्हाट इज दिस पीआरपीपी सिंथेटेज? दिस इज फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। इसका काम क्या है? दिस इज कन्वर्टिंग राइबोज 5-फॉस्फेट टू फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये आपने प्यूरिन बायोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप में देखा होगा, ठीक है। जो राइबोज 5-फॉस्फेट से फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेज। अब जब इस एंजाइम का इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर ये किसी भी डिफेक्ट की वजह से इस एंजाइम का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? आपका जो राइबोज 5-फॉस्फेट से दिस पीआरपीपी ज़्यादा बनेगा। इससे फर्दर आपका इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा ज़्यादा और वो आपके प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का ओवर प्रोडक्शन करेगा। फर्दर ये आपका जब कैटाबोलाइज होगा तो दिस विल प्रोड्यूस हाइपोजेंथीन, ज़ैंथीन एंड यूरिक एसिड।
तो अब ये देखिए कि अगर आपका ये एंजाइम एलिवेट हो रहा है तो इसकी वजह से ये भी जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं एंड फर्दर इनोसिन मोनोफॉस्फेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से उसका जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा. So this is PRP synthetase. Now, second enzyme is PRPP glutamyl aminotransferase. ये भी एंजाइम अभी आपने देखा कि जो आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ योर 5-phosphoribosal amine फ्रॉम योर phosphoribosal pyrophosphate. तो ये आपका सेकेंड स्टेप है प्यूरिन बायोसिंथेसिस का. अगर आप देखें पीछे तो यहाँ पे अगर ये एंजाइम दिस PRPP ग्लूटामिल एमिडोट्रांसफरेज इज इंक्रीज्ड, ठीक है, ये एंजाइम अगर ज़्यादा है आपका किसी भी डिफेक्ट की वजह से, कोई भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, तो ये PRPP से आपका 5-phosphoribosal अमीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फर्दर आपका इनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा एंड दस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, एंड फर्दर उसका कैटाबोलिज्म होने पे दिस विल इंक्रीज्ड द यूरिक एसिड प्रोडक्शन. तो ये जो दो एंजाइम्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस. अगर इनमें डिफेक्ट होने की वजह से दे आर इन हायर कंसंट्रेशन, तो ये प्यूरिन का ज़्यादा बायोसिंथेसाइज करेंगे एंड फर्दर ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होने की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. नेक्स्ट एंजाइम इज योर HGPRT. For better understanding of your this primary gout, please refer this figure 17.9. ठीक है, इसमें आपको सारा क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से एंजाइम्स की वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है. सो नेक्स्ट एंजाइम इज योर HGPRT deficiency. तो what is this HGPRT? This is hypoxanthine guanine phosphoribosal transferase. ये अब कर क्या रहा है? तो दिस HGPRT, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें HGPRT डेफिशिएंसी की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. सो दिस HGPRT, दिस इज हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोरिबोसल ट्रांसफरेज, क्या कर रहा है? हाइपोजेंथीन से इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, वहीं ग्वानिन से GMP बना रहा है. तो ये एंजाइम देखिए, ये खुद ही बोल रहा है दिस इज फॉस्फोरिबोसल ट्रांसफरेज. तो ये फॉस्फोरस ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, तो आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है हाइपोजेंथीन में, सो इट कन्वर्टिंग इनटू इनोसिन मोनोफॉस्फेट. वहीं ग्वानिन में फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है, तो दिस इज कन्वर्टिंग इनटू GMP. अब जब ये डेफिशिएंट होगा एंजाइम तो क्या होगा? देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं है, तो क्या होगा? ये हाइपोजेंथीन इनोसिन फॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट होगा या ग्वानिन GMP में कन्वर्ट नहीं होगा. सो दैट विल बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ हाइपोजेंथीन एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्वानिन. ठीक है, यहाँ पे ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से इनका जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी इंक्रीज्ड, एंड ये फर्दर आपकी दिस विल अगेन कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड. इसके अलावा दिस वर्क, जो आपका एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, ये आपकी प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसके बायोसिंथेसिस को दो तरह से रेगुलेट कर रहा है. एक तो आपका जो यूटिलाइजेशन है प्यूरिन का, ठीक है, वो डिक्रीज कर रहा है. जो आपका प्यूरिन, जो आपकी प्यूरिन्स हैं जो बने हैं, उनका यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो फर्दर इनोसिन में नहीं कन्वर्ट होंगे और उसका न्यूक्लियोटाइड नहीं फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे वो यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करके उसके एक्यूमुलेशन कर रहा है बॉडी में. अब जब एक्यूमुलेशन करेगा तो ये फर्दर कैटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. दूसरी तरह से, दूसरे मैकेनिज्म से क्या कर रहा है ये? जब IMP एंड GMP का लेवल डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट एंजाइम इज योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज डूइंग? ये आपका दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये आपका जनरली हमने ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ा था, जहाँ से ग्लाइकोजन इज ब्रेकिंग डाउन इनटू
ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजन से फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है एंड दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब जब ये एंजाइम कम होगा या डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है दैट विल बी इंक्रीज्ड, इसका जो लेवल है, इसका कंसंट्रेशन दैट विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि यहाँ पे ये एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। सो दिस विल बी इंक्रीज्ड एंड दिस विल, ये आपका HMP शंट को इंड्यूस करेगा एंड दिस विल प्रोड्यूस द राइबोज 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये HMP शंट को एक्टिवेट करके राइबोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा एंड जब आपका राइबोज 5 फॉस्फेट का ओवर प्रोडक्शन होगा तो दैन अगेन ओवर प्रोड्यूस योर inosine monophosphate and hence purine nucleotide, and further the catabolism of your purine nucleotide will increase the level of uric acid, ठीक है। तो नेक्स्ट एंजाइम इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। अब अगर आपका इंक्रीज्ड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है तो ये आपका NAD प्लस का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा which will be utilized by HMP shunt and again it will increase the production of ribose 5 phosphate and आपका further your purine nucleotide synthesis increase करेगा। So we have studied कि आपके ये सारे enzymes किस तरह से प्राइमरी गाउट को आपके रिस्पॉन्सिबल हैं कॉज करने के लिए। तो ये जितने भी अभी तक हमने एंजाइम्स देखे ये सारे अगर आपकी किसी भी तरह से उनका डिफेक्ट है तो दिस विल लीड्स टू प्राइमरी गाउट। तो हमने एंजाइम देखा PRP सिंथेटेज एंड PRP ग्लूटामिल एमिलोट्रांसफरेज जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इनका अगर लेवल इंक्रीज करेगा तो प्यूरिन बायोसिंथेसिस ज़्यादा होगी एंड फर्दर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। वहीं HGPRT डेफिशिएंसी एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी की वजह से हमने देखा कि किस तरह से ये HMP शंट को इंड्यूस करेगा एंड फर्दर आपके हाइपोजेंथिन एंड ग्वानिन का लेवल इंक्रीज करके फर्दर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन या लेवल एलिवेट कर रहा है। वहीं आपका ग्लूटाथायोन रिडक्टेज अगर इंक्रीज होगा तो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ NAD प्लस विच विल लीड्स टू HMP शंट एंड फर्दर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट। नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी गाउट। नाउ द सेकेंडरी गाउट इज अगर आपका कोई भी दूसरा डिजीज़ है पेशेंट को जिसकी वजह से यूरिक एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो गया है यूरिक एसिड का, ठीक है, या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से अगर यूरिक एसिड एराइज करेगा ब्लड सेरम में तो दैट कंडीशन विल बी सेकेंडरी गाउट, ठीक है। तो जो सेकेंडरी गाउट वो अगर पेशेंट में कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का ब्लड सेरम लेवल इंक्रीज कर रहा है तो वो कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी गाउट। इसमें वो डिजीज़ की वजह से या तो हो सकता है सिंथेसिस ज़्यादा हो यूरिक एसिड का, या फिर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाए, या फिर जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसका डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाए। इस वजह से अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी गाउट। तो ये सारे कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, सोरियासिस, जिसकी या फिर टिश्यू ब्रेकडाउन इंक्रीज होने की वजह से ये आपका यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका रीनल फंक्शन कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड है, ठीक है, आपका जो आपका किडनी कहीं डैमेज है या फिर रीनल फंक्शन आपका किसी तरह से इम्पेयर है, उसकी वजह से अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो अगेन यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, दैट विल लीड्स टू गाउट। सो दिस इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी गाउट। नाउ वी विल सी द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो जनरली जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज योर एलोप्यूरिनॉल। ये जनरली आपके हाइपोजेंथिन का एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है जो जैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है। तो ये जैंथिन ऑक्सीडेज आपने देखा था फिगर 17.10 में कि आपके हाइपोजेंथिन से जैंथिन में कन्वर्ट करता है एंड जैंथिन से फर्दर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा, इस एंजाइम को इनिबिट कर देगा ताकि फर्दर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ना हो। इसके अलावा ये आपके एलोप्यूरिनॉल को
एलोजेंथीन में ऑक्सीडाइज करके दिस विल बी मोर इनिबिटर, द इफेक्टिव इनिबिटर फॉर xanthine। तो इस तरह से ये एलोप्यूरिनॉल काम करेगा एंड दिस विल इनिबिट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट वी विल कवर द बायोसिंथेसिस ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। सो आपका pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं? दिस इज थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। सो बिफोर गोइंग टू लेट्स जस्ट ब्रीफ कि आपका pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं। सो विल जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से, दिस इज सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, दिस इज साइटोसिन न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे साइटोसिन न्यूक्लियस है, दिस इज pyrimidine न्यूक्लियस, सेकेंड एंड पे कीटोन एंड फोर्थ पे अमीन ग्रुप, एंड दिस इज योर राइबोस 5-फॉस्फेट। नेक्स्ट इज योर यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है दिस इज योर यूरासिल। ठीक है, ये आपका pyrimidine न्यूक्लियस हो गया और सेकेंड एंड फोर्थ पे कीटोन ग्रुप हो गया, दिस इज यूरासिल, और दिस इज योर राइबोस 5-फॉस्फेट। नेक्स्ट न्यू आपका है दिस इज थाइमिडीन। तो यहाँ पे देखिए दिस इज योर थाइमिन न्यूक्लियस, यहाँ पे दिस इज योर प्यूरिन न्यूक्लियस एंड कंटेनिंग सेकेंड एंड फोर्थ पे कीटोन ग्रुप एंड फिफ्थ पे मिथाइल ग्रुप। एंड हियर देखिए आपका थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो यहाँ पे जो शुगर होगा दिस विल बी योर डीऑक्सीरिबोस शुगर। तो यहाँ पे सेकेंड पे आपका ऑक्सीजन रिमूव्ड है, सो दिस इज योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो ये आपके हो गए pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर pyrimidine न्यूक्लियस, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। देख, सो वी विल सी द हाउ दिस pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड। तो ये जो आपका सिंथेसिस है pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स का, दिस इज वेरी सिंपल कंपेयर टू योर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे सबसे पहले pyrimidine रिंग का फॉर्मेशन होगा एंड देन राइबोस 5-फॉस्फेट विल बी अटैच्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद योर पाथवे। सो यहाँ पे सबसे पहले दिस CO2 एंड ग्लूटामिन, ठीक है, ये एसोसिएट होके इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ATP दिस विल फॉर्म द कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे देखिए 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है, एक ATP एनर्जी सोर्स के लिए और एक ATP फॉस्फेट ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ATP से 2 ATP तो निकल रहे हैं लेकिन एक PI निकल रहा है और एक PI यहाँ पे अटैच हो रहा है। एंड ग्लूटामिन से यहाँ पे अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है इनटू CO2। ठीक है, CO2 देखिए यहाँ पे, ये रहा दिस इज CO2 जिसमें ग्लूटामिन का अमीन ग्रुप ट्रांसफर होगा एंड द ग्लूटामिल विल बी रिलीज्ड एंड द एंजाइम आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में द CO2 इज टेकिंग दिस अमीन ग्रुप ऑफ फ्रॉम ग्लूटामिन एंड कन्वर्टिंग इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, next this carbomoyl phosphate is the presence of aspartate transcarbamylase। ये aspartate की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी ये आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये आपका CO ग्रुप था, यहाँ पे NH2 ग्रुप था, यहाँ पे ये एस्पार्टेट अटैच हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर एस्पार्टेट जो कि आपके कार्बोमाइल फॉस्फेट से अटैच हुआ है। यहाँ पे आपका CO था और ये अमीन का NH3 ग्रुप, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस कार्बोमाइल, ठीक है, NH2CO, दिस NH2CO और यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे ये PI रिमूव हो गया और ये एस्पार्टेट का जो अमीन ग्रुप था ये इसके साथ वाटर निकाल के दिस गॉट अटैच्ड विद दिस कार्बोमाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये एस्पार्टेट, सी ये आपका CH2COH, CH, NH3 एंड COOH, ये आपका एस्पार्टिक एसिड ये इससे अटैच हो रहा है। सो दिस इज फॉर्मिंग कार्बोमाइल एस्पार्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके दिस विल फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन N एटम एंड C एटम। तो यहाँ पे कार्बोमाइल एस्पार्टेट डिहाइड्रोओरोटेज की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं एंड दिस इज फॉर्मिंग द डाईहाइड्रोओरोटेट।
इसके लिए आप स्ट्रक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं। जनरली जो ओरोटेट होता है, ठीक है, ओरोटेट या हम कह सकते हैं ओरोटिक एसिड, दिस इज योर पिरिमिडीन डाईओन। जो ओरोटिक एसिड होता है ये पिरिमिडीन का डाईओन डेरिवेटिव होता है। पिरिमिडीन में जब दो कीटोन ग्रुप होते हैं, सी दिस इज पिरिमिडीन रिंग, इसमें जब दो कीटोन ग्रुप होते हैं एंड यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होता है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओरोटिक एसिड। सो दिस इज योर डाईहाइड्रो ओरोटिक एसिड। यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई दिस इज डाईहाइड्रो ओरोटेट। अब क्या होगा, दिस डाईहाइड्रो ओरोटेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या होगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NAD+। तो ये जो NAD+ है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो कौन ले रहा है, NAD+, दो हाइड्रोजन लेके इट्स कन्वर्टिंग इनटू NADH एंड H+ इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। So this is forming the orotate. This is the structure of your orotate. अब जो ओरोटेट है, ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ओरोटेट फॉस्फोरिबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, जो आपका फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट था, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये आप स्ट्रक्चर देखिएगा जो आपका प्यूरिन बायोसिंथेसिस में दिया है स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिबोसिल 5-फॉस्फेट है, तो ये पायरोफॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और राइबोस फॉस्फेट को इससे अटैच कर देंगे। देखिए अभी यहाँ तक आपका पूरा पिरिमिडीन न्यूक्लियस सिंथेसाइज हो गया। अब यहाँ पे राइबोस फॉस्फेट अटैच होगा। सो इन दिस स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे राइबोस फॉस्फेट अटैच हो रहा है। सो दिस PRPP विच इज अ phosphoribosal pyrophosphate in the presence of orotate phosphoribosal transferase, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए और रिबोसल 5-फॉस्फेट यहाँ पे आके अटैच हो गया है। सो दिस हैड फॉर्म्ड ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये आपका ओरोटिडीन, ओरोटेट का स्ट्रक्चर एंड दिस इज राइबोस। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। देखिए इसको ये एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, सो दैट्स व्हाई इट्स बिकम ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब क्या होगा यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ OMP डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, CO2 रिमूव होगा एंड दिस विल गिव्स द यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो आपका ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर यूरेसिल का हो गया एंड यहाँ पे आपका राइबोस शुगर अटैच है। सो दिस हैज बिकम यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। अब ये यूरिडिन मोनोफॉस्फेट फर्दर ATP की प्रेजेंस में इसने एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो UMP हैज टर्न इनटू UDP, दैट इज यूरिडिन डाइफॉस्फेट। काइनेज हमेशा फॉस्फोराइलेशन का काम कर रहा है, का रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। सो दिस UDP इज नाउ इज कन्वर्टिंग इनटू, अब देखिए यहाँ पे जो UDP है, यहाँ पे जो शुगर है, अब ये UDP इज कन्वर्टिंग इनटू थाइमिडीन एंड फर्दर CTP। अब देखिएगा ये जो UDP अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो UDP में राइबोस शुगर है, वेरेस थाइमिडीन में कौन सा शुगर होता है आपका, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये देखिए इसके प्रेजेंस में आपके रिबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में आपका एक ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, हट रहा है, तो दिस शुगर विल बिकम डीऑक्सी यूरिडिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आपका जो शुगर है दिस इज गेटिंग डीऑक्सीडाइज्ड, एक ऑक्सीजन हट रहा है। सो दिस बिकम डीऑक्सी यूरिडिन मोनो डाइफॉस्फेट। अब ये फिर से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा एंड दिस, अब यहाँ पे N5N10 मिथाइलिन THF टेट्राहाइड्रोफोलेट थाइमिडीन
थाइमिडाइलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में दिस इज फॉर्मिंग द थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, जिस शुगर इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो जो आपका थाइमिडीन है इसमें स्ट्रक्चर तो आपका यूरेसिल का ही होगा, सिर्फ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, ये आपका यूरेसिल का है स्ट्रक्चर। थाइमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट की प्रेजेंस में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है एंड दिस कन्वर्टिंग इनटू थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। नाउ दिस UDP in the presence of ATP and kinase is converting into UTP, that is uridine triphosphate. अब in the presence of CTP synthetase and glutamine, अब देखिए यहाँ पे अमीन ग्रुप अटैच होगा, स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। सो ग्लूटामिन क्या कर रहा है, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करेगा एंड दिस कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामेट। सो दिस इज converting into UDP to CTP. So this is the biosynthesis of your pyrimidine nucleotides.